रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें सही दिशा नहीं मिल रही। We turn to astrology or spirituality or religion or a higher power when we are not able to solve a painful situation or an obstacle like situation by our normal skills and education. For example, if somebody has a disease, the most obvious thing is to do lab tests, consult a doctor, follow the treatment. If that does not bring an appreciable difference, then consult another doctor. If that doesn't happen, then consult another doctor. Then listen to the neighbor, put this oil here, there. Then visit some temple. Then visit the astrologer. The problem that has happened, most of the real good spiritualists or astrologers are not on the internet. For example, if I say Pitra Dosh Puja, Pitra Dosh generally happens when the luminaries, the sun or the moon, combine with the nodes Rahu or Ketu. So somebody wrote that on the internet. And then 100 cut copy paste masters wrote the same thing on the internet. And the normal customer who thinks that most of the information is on the internet performs those things and fails. And the pain does not solve. Now there are several things happening here. Number one, the garima of the Shastra goes down because that has becomes the people perception. Yeah, I did this, I paid money, nothing happened for me. This thing is no good. Or people in this field are frauds. The problem over here is, it's a very good question that we can take so many things from. When I wrote the article, Do Gemstone Work, I wrote that article because of a painful situation of a lady. And because I see painful situations every day, I thought that maybe this article will help people. But fate is very, very powerful. Even things which are in front of us, when the time is not good, you cannot understand their usefulness. Even if you have trained a lot. So number one, when there is a problem that is not solvable as of now, you should first find out why this problem has come to me particularly. Everybody will have unique problems. सबके अलग अलग पेन पॉइंट है. तो आपके जो ज्योतिषी है उसको ये डायग्नोस करना है कि ये बुरा कर्म आपके साथ क्यों चल रहा है. अगर तो हमने आपको नहीं बताया कि ये बुरा कर्म क्यों चल रहा है, किस कारण ये विपत्ति आई है, आप जो भी प्रयोजन करने जा रहे हैं, साधना करने जा रहे हैं, कर्म कांड करने जा रहे हैं, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा. भाई अगर मैं आपको बताऊं नहीं डेस्टिनेशन, अगर मैं आपको बोलूं यार चलो हमें केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट जाना है, तो आपको मालूम है यार कौन सा रूट लेना है, कहाँ पे बारिश होगी, कहाँ ब्लॉकेज होगा, आप सही रूट पकड़ोगे. अब मैं आपको ये चाबी दे दूं गाड़ी कि यार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप बैठे हो, तो उसमें कुछ भी नहीं होगा. अगर मैंने आपको दे दी चाबी, जैसे कि पंडित ने बता दिया ये पूजा कर लो, और बताया ही नहीं क्यों कर रहे हैं, किस वास्ते कर रहे हैं, तो रिजल्ट ज़ीरो. तो ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी जिस तरह से आज प्रैक्टिस की जाती है, वो तो एस्ट्रोलॉजी है नहीं. तो आज मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ मेरे केस स्टडीज़ से, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे केस स्टडीज़ हैं. आज मैंने बात करी
your secret source of energy. This secret source of energy is just for you, exactly matching your DNA, your abilities, your past life. आजकल एक कॉमन मेलेडी क्या है? All of us are busy. We are all trying to do something. Our heart is in the right place. पर यार रिजल्ट तो आना है ना. रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमें सही दिशा नहीं मिल रही. ये 2003 की बात है. एक सज्जन मुझसे मिलने आए और उनका ओपनिंग सेंटेंस ये है कि गुरुजी मैं एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं करता. तो मैंने कहा यार फिर मैं तो आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप इतने आध्यात्मिकली तो इवॉल्व हो नहीं कि मैं कुछ कह दूं और आप करके आ जाओ. ना तो आपको तंत्र आता है, आप तो पढ़ के आए हो. तो मैं क्या, तो मैंने कहा तुम आए क्यों आए काहे? तो बोले कि मेरे को फलाने XYZ ने बोला आपसे मिलने की और उनकी मैं बड़ी इज्जत करता. तो मैंने कहा तो यार मैं तो आपकी मदद नहीं कर सकता, आप जाएं. फिर वो गया. उसने सोचा यार ये आदमी अजीब है, मैं तो गया था. भाई वो तो नॉर्मल आदमी तो ये सोचता है ना कि अगर पैसा दे रहा है तो पैसा तो हर किसी को चाहिए. मैंने कहा आप तो जाओ. फिर वो मुझसे मिला 2005 में. तो थोड़ा मोटा हो गया था. मैंने कहा यार तू तो 2003 में भी आया था? बोले हाँ आया था. तो मैंने कहा आप काहे आए? बोले नहीं मैंने आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, मैं वाकई में आपसे सलाह करना चाहता. तो मैंने उसकी कुंडली देखी पहले. मैंने कहा यार देख पहले मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है? मैंने कहा तूने 4 बार व्यापार शुरू किया है और 4 बार तू फेल हुआ है. तो वो मुझे देखे. मैंने कहा है या नहीं? बोले कि नहीं चौथा तो मैं अभी कर रहा हूँ और फेल होने वाला है. तो मैंने कहा भाई पहली बार तूने जो व्यापार किया उसमें तूने अपने बाप से पैसा लिया था. बोले जी. मैंने कहा दूसरी बार तूने व्यापार किया तो तूने अपने मित्रों से पैसा लिया. बोले जी. उनका तीसरी बार तूने व्यापार किया तो तूने ससुर से पैसा लिया. बोले हाँ. मैंने कहा चौथी बार ये जो तूने व्यापार किया है तूने नानी से पैसा लिया. वो तो शौक. बोले आपको कैसे मालूम? मैंने कहा इसलिए हम गुरुजी हैं भाई. तो मैंने उसको बोला, तो मैंने कहा यार देख, क्योंकि वो तो उस लेवल पे बाद में मुझे मालूम पड़ा ही इज अ IIT IIM कॉम्बो. उसकी हिस्ट्री क्या है? उसने IIT के बाद IIM किया. IIM के बाद उसने 1 साल विस्कॉन्सिन नाम की जगह है यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पर उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ काम किया. विस्कॉन्सिन से नौकरी करने के बाद 3 साल उसने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब टॉप 25 में. दैट मीन्स ही हैज़ द एबिलिटी टू बी हायर्ड बाय दोज गाइज. मीन्स यू हैव समथिंग रियली स्पेशल. तो उसने 3.5-4 साल उसने वहाँ काम किया. और सिंगापुर का इकोसिस्टम उस समय में क्या, इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विथ स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इंटरनेट टेक्नोलॉजीज. तो उसने क्या 2-3 लोगों को ऐसे ही एडवाइस करी, ये कर ले वो कर ले, और उनके क्या बिजनेस सक्सेसफुल हो गए. फिर इसको मोटिवेशन आई कि यार मैं जब खुद एडवाइस दे रहा हूँ तो मैं खुद ही कर लेता हूँ. लेकिन वो 4 बार फेल हुआ. अब हमने कैसे बताया? वो डायग्नोसिस है, वो तो गूगल में मिलने वाला नहीं है. तो मैंने कहा बेटा तू हताश मत हो,
तू 3 साल और नौकरी कर। तूने अपना कार्मिक डेट सेटल नहीं किया है। तुझे लगता है तूने पैसा दिया। बोले गुरुजी मैं तो मर मुरा के जो कर कुरा के मैंने चारों के पैसे लौटा दिए एक्सेप्ट फॉर नानी के, और वो भी नानी का भी मेरा एक वो आएगा कुछ बोनस वोनस, तो मैं वो नानी के भी पैसे लौटा दूंगा। मैंने कहा यही तूने गलती करी बेटा। 2-2 ढाई साल तूने पैसे रखे, तूने कुछ कमा के दिया क्या इन लोगों को? मैंने कहा अब पहले इस जन्म का कार्मिक डेट उतार। ये सब तेरे प्रियजन हैं, तू इनसे वापस मांगने जाएगा ना तो भी दे देंगे, लेकिन तुझे मालूम नहीं तूने क्या किया है। तूने इनका पैसा 3-3 4-4 साल रखा और वैसा का वैसा दे दिया, जबकि करेंसी की वैल्यू बदलती जा रही है, इन्फ्लेशन बदलती जा रही है। मैंने कहा तू अपने दिल से कोई भी एक इंटरेस्ट सेट कर, आधा % हो, 1% हो, 2% हो, इंटरेस्ट सेट कर। वो इंटरेस्ट ला जाकर दे इनको, और 3 साल बाद चारों से थोड़ा पैसा लेके आना। बोले गुरुजी अब तो मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है किसी पैसे वैसे में, मेरी सैलरी भी इतनी है, ये है वो है। मैंने कहा सुनना कर बात। मैंने कहा चारों से कुछ कुछ पैसा लेके आइए, और मुझसे आखिर में मुझसे 1 रुपया लेकर जाना। तो उसने 3-4 साल बाद वो आया मेरे पास। बोले गुरुजी मेरी हिम्मत नहीं, अब नौकरी तो सही है मेरी, और चक्कर यह है कि जिसको भी मैं एडवाइस देता हूँ उसका बिजनेस चल जाता है। तो पैसा लाया उसने, मुझसे भी 1 रुपया लिया। मैंने कहा तू खुद की कंपनी में नौकर बन, इस तरह से कंपनी रिस्ट्रक्चर करो कि यू आर एन एम्प्लॉई, तू कभी बॉस नहीं बनेगा। तू भले नंबर 1 हो जा, लेट पीपल रिपोर्ट टू यू, बट यू आर अ सर्वेंट ऑफ द कंपनी। ये तू हमेशा याद रख यार। वो कंपनी 3 साल में यूनिकॉर्न हुई। यूनिकॉर्न, $1 मिलियन वैल्यूएशन, आज के तारीख में 7,000 लोगों को एम्प्लॉय करता है और कंसल्टेंसी करता है। मजा होता है। तो शास्त्र में बहुत पावर है। जो ऋषि हमारे ज्ञान देकर गए हैं उसमें बहुत पावर है, उसको ढंग से हार्नेस करना। अब क्या है, लोगों के अंदर भी माइंडसेट नहीं है, भिखारियों की तरह उपाय मांगते फिरते हैं। एक आदमी से नहीं हुआ तो दूसरे के पास पहुंच गए, दूसरे के पास नहीं गए तीसरे के पास पहुंच गए।